Good morning, students. I, J. Vinpreeti Singh, Assistant Professor of Faculty of Pharmaceutical Science, विजयवती विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी। जैसा कि लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल एरिया, कैसे मेंटेन करते हैं किसी भी स्ट्राइल एरिया को, वो हमने डिस्कस किया था। और फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक के लिए ये बोला था कि कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो कंटामिनेशंस होते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस के टाइम पे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारा सब्जेक्ट है बी फार्म 6 सेमेस्टर का। उसमें हम डिस्कस करेंगे कंटामिनेशन कंट्रोल एंड स्टाइल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं हमारे जो एनवायरनमेंट में, वो कैसे एक्सपोज होते हैं हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोसेस से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म पोज थ्रेट because they are small, grow quickly and are abundant in the atmosphere and environment. Their main types are virus, fungi, bacteria and spores. They can cause disease, pathogens, and some elements of some pathogens are enough to cause to immune response. देन वी कम टू द क्लीन रूम। कैसे किसी भी कंटामिनेशन से फ्री करने के लिए किसी भी रूम को हम कैसे क्लीन करेंगे तो कोई भी कंटामिनेशन नहीं होगा जिस टाइम पे हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो जो स्टराइल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड स्पेशली डिज़ाइंड एंड constructed manufacturing areas separate from other, and different types of operations should be separated. Solutions preparation, filling, component preparation and sterilization are 4 different stages of the operation process. And negative air pressure can be used in isolation room to prevent the escape of the air from a clean room environment. This means that when doors are opened, air flow into the room and not out it. Positive air pressure are used in grade AB environments and prevents the entry in new air into the room via the door. So that's why the doors will be closed for the time of the process. The pressure gradient forces air outward. If the door is opened, that the air is the cyclic and in room while filtration system, and air enters this way. Air is important to control as through not a nutrient store in its own right, and airborne organisms are found on airborne matter attached to particles that are not visible to the naked eye, and particle sediment in the air and the redistributed when the air is exposure. So air flows can cause pathogens trapped on sticking particles to become dispersed in the air and settle on the bench. हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, जिसको हम बोलते हैं HEPA फिल्टर्स, HEPA फिल्टर्स आर यूज्ड टू फिल्टर एयर टू एप्रोप्रिएट एफिशिएंट। क्लीन रूम स्पेसिफिकेशंस, क्लीन रूम के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं। स्पेसिफिकेशंस फॉर द माइक्रोबियल कंटामिनेशन लेवल ऑफ क्लीन रूम डिपेंड ऑन द grade and the system observed. There are 2 important classified system in the EU and US guideline. According to EU and US guideline, is the very most important clean room specifications. EU grade A, B, C, and D, and US grade 100, 1000, 10,000, and 1 lakh. Grade B areas are the cleanest and most sterile areas typically used in the aseptic preparation of the parenterals and high risk medication. Now we come to the point measuring aerial contamination. How to measure the aerial contamination? Settle plates can be used to test aerial contamination. They are a nutrient plate, and that is agar, which is monitors the setting of the particles larger than the 100 micrometer via gravity.
Small particles are not represented by the settle plates, and we are unaware of the volume and air introduced. So the samples are the perhaps better measures of the aerial contamination, as they are able to provide a measure of the number of the organization or जो भी organisms associated with the volume of the air. The disposition of the particle is slight sampling depends on the slight size. नाउ वी कम टू द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. क्या हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हमारी होती हैं जो कि हम माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन हमारा हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू. ऑपरेशन शुड बी ऑपरेट टू हाई स्टैंडर्ड of the personal cleanliness and reporting any medical conditions such as cold, skin infection, so that the situation can be evaluated. Within clean room environment, there should be minimal staff and activities are limited to avoid excess shedding of microorganisms. Personnel should be trained on how to grow appropriate, which will vary depending on the grade of room being used for the product being prepared. Sterilization. How to sterilize the cleanliness area and aseptic area. Microorganisms are expressed as either viable and dead according to their ability to grow. After exposure to a lethal agent, the viable cells begin to die, but do not usually all at once. The reduction in the number of the viable cells following exposure to a lethal agent is plotted as the log number of the viable cells, or log percentage of viable cell against time. This therefore provide a constant proportion of the viable cells and not a constant number of the organisms kills per the unit. मेजर ऑफ स्टरलाइजेशन. मेजर ऑफ स्टरलाइजेशन हम कैसे करेंगे? द इनएक्टिवेशन फैक्टर IF इज मेजर ऑफ द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म produced by the sterilizing process. It is calculated using the sterilization time and D value in the following manners. Those products that are not sterilized in their final containers are referred to as non-terminally sterilized. They have been prepared using previously sterilized material and under aseptic condition and so are assumed to be sterilized product. Enter finished product being sterilization alone. They cannot be assembled and filled in their final containers and anywhere other than aseptic clean room. अप्रोचेज ऑफ स्टरलाइजेशन. अप्रोचेज ऑफ स्टरलाइजेशन हमारी क्या होती हैं? कौन कौन सी अप्रोचेज यूज़ करते हैं स्टरलाइज करने के लिए? द ओवरऑल किल मैथड इज स्टरलाइजेशन. यूज स्टरलाइजेशन साइकिल्स दैट इनएक्टिव a great number of microorganisms than the actual of the batch A. Immune sterility assurance level is defined as the process. फर्स्टली जो हम अप्रोचेस यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, उसमें फ़र्स्ट हम यूज़ करते हैं हीट स्टरलाइजेशन. हीट स्टरलाइजेशन से भी जो हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है वो इम्प्रूव होता है और कोई भी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं और कोई भी कंटामिनेशन होने के चांसेस नहीं होते. देन हम आते हैं स्टीम स्टरलाइजेशन. जो स्टीम स्टरलाइजेशन होता है टेक्निकली ए मेथड ऑफ हीट स्टरलाइजेशन. ये एक मेथड है हीट स्टरलाइजेशन का ही. एंड स्टरलाइजेशन प्रोडक्ट्स विद स्टीम अकर्स in an autoclave according to BP sterilization with saturated steam under the pressure in preferred volume. ड्राई हीट स्टरलाइजेशन. हम स्टरलाइजेशन करने के लिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का भी यूज़ करते हैं. प्रिपरेशन दैट आर बी स्टरलाइज्ड बाय द ड्राई हीट and distributed in their final containers and they are sealed to exclude microorganisms. Heating is often at very high temperature in excess of 250 degree
with shorter sterilization time requiring higher temperature than long exposure. मोइस्ट हीट का भी हम यूज़ करते हैं और ड्राई हीट का भी यूज़ करते हैं. देन हम फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. फिल्ट्रेशन टेक्निक इज़ अ नॉन टर्मिनल स्टरलाइजेशन मेथड एंड दैट डज नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ड्राई हीट, मोइस्ट हीट एंड रेडिएशन ऑफ अचीव फॉर द स्टरलाइजेशन. देन हम यूज़ करते हैं आयोनाइजेशन मेथड का. और जो रीज़न फॉर स्टरलाइजेशन हमारा होता है, क्यों हम स्टरलाइजेशन करते हैं, स्टरलाइजेशन इसलिए करते हैं कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री करने के लिए हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं. स्टराइल फ्रूट कंटेनर्स, कुछ ऐसे कंटेनर्स हमारे होते हैं जो ऑलरेडी स्टरलाइज्ड फ्रूट कंटेनर्स होते हैं जिसमें कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस कम होते हैं. नाउ वी कम टू द क्लोजर्स एंड स्टराइल कंटेनर्स. क्लोजर और स्टराइल कंटेनर्स हमारे वो होते हैं जो ऑलरेडी स्टरलाइज्ड होते हैं, जिनको हमें दोबारा से स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती. लेबलिंग ऑफ द स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट, जो भी हमारे ऑलरेडी स्टरलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम वेल बीइंग लेबल्ड कर देंगे. लेबलिंग के बाद ही उनको हम यूज़ करेंगे कि उसमें क्या मतलब लेबल कर देंगे कि हमें वो आइडेंटिफाई करने में ईजी रहे कि क्या कौन सा हमारा नॉन स्टरलाइज्ड है और कौन सा हमारा स्टरलाइज्ड है. तो आज हमने क्या बात की कि कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन. कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन हमने ये टॉपिक हमने डिस्कस किया. इसमें हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिस टाइम पे हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन आकर के हमारे प्रोडक्ट को इन्फेक्ट ना करे, इसलिए हमने डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स यूज़ करी, डिफरेंट टाइप्स की हमने अप्रोचेज़ यूज़ करे कि जिससे हमारा जो कंटामिनेशन है वो कंट्रोल रहे. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट सिलेक्शन. इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो इक्विपमेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स होते हैं कि जितना हमारे डिसाइडेड होता है कि इतने इक्विपमेंट्स हम यूज़ करेंगे, और उससे फर्दर रेस्पेक्टिव कौन से हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जिनसे हम अपनी प्रिपरेशंस बनाते हैं. सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम टैबलेट्स बनाते हैं, कैप्सूल्स बनाते हैं, तो उसके लिए कौन से रॉ मटेरियल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, और उसकी क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल यूनिट को अच्छे से हम कंट्रोल करके रखेंगे. जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, अगर उनकी कैपेसिटी और उनकी क्वालिटी कंट्रोल रहेगी, उनका एश्योरेंस सही रहेगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो भी सही बनेगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इक्विपमेंट सिलेक्शन. अगर हम इक्विपमेंट सिलेक्शन की बात करते हैं तो किस टाइप के जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो किस टाइप के इक्विपमेंट्स हमारे किसी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो प्रॉपर कैलिब्रेटेड हों और प्रॉपर वैलिडेटेड हों, उसमें बार रिजल्ट्स में फ्लक्चुएशंस नहीं आए. ठीक है, तो इक्विपमेंट सिलेक्शन परचेज स्पेसिफिकेशन जो होता है, उसको हम किस बिहाफ पे किसी भी इक्विपमेंट का हम सिलेक्शन करेंगे अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट सिलेक्शन, परचेज स्पेसिफिकेशन एंड मेंटेनेंस. ठीक है, अभी जो कंट्रोल ऑफ कंटामिनेशन है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप इस वीडियो के नीचे मेंशन कर सकते हैं. सो थैंक यू.